Hello everyone. In this video, we'll be discussing two more questions of quants which appeared in CAT 2020 slot 2. Let us see the first question. The question is of simple interest and compound interest and a very basic question if you understand it well. For the same principal amount, the compound interest for 2 years at 5% per annum exceeds the simple interest for 3 years at 3% per annum by rupees 1125, then the principal amount in rupees is. This was a theta question, it means you have to write the answer. So question says कि for the same principal amount, let us consider it as P, the compound interest for 2 years, the compound interest for 2 years and the rate of interest is 5% per annum exceeds simple interest for 3 years and the rate of simple interest is 3% per annum. So according to the question, for the same principal, compound interest of R 5% per annum for 2 years is 1125 more than simple interest on the same sum but at 3% per annum. हमें एक बात बहुत बेसिक सी सिखाई गई है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीजेस सक्सेसिवली बट सिंपल इंटरेस्ट इट कीप्स ऑन जस्ट एडिंग टू ईच अदर. तो अगर मैं कहूँ 5% पर एनम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2 साल की बात की जा रही है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो वो 5 + 5 10 नहीं होगा. आपको पता है 5% पर एनम का जो इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल का, तो एक बहुत बेसिक सा परसेंटेज का फॉर्मूला है कि A% का और B% का अगर चेंज है तो सक्सेसिव चेंज होता है A + B + AB by 100. तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्टिव रेट होगा दैट विल बी 5 + 5 + 5 × 5 by 100. This will be 10.25%. This will be the effective rate of interest of 2 years compound interest. What will be the effective rate of interest of 3 years simple interest? Simple interest सिर्फ ऐड होता जाता है, इसका सक्सेसिव नहीं होता है. तो आप जानते हैं 3% लेकिन 3 साल का, तो कहोगे 3 + 3 + 3 which is 9%. This is also calculated on principal. This is also calculated on principal. So the base is same, which is principal. तो इसका जो difference आ रहा है हम observe कर सकते हैं 10.25% minus 9%, and इन दोनों का difference is 1.25% obviously of principal, and this difference is actually equal to 1125. So if we calculate it, it will become 1.25 upon 100 of P equal to 1125. इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो 1.25 जो है वो 9 टाइम्स जाएगा तो 1125 के आसपास बनेगा. एक्चुअली ये पॉइंट है तो इसलिए ये 900 बन जाएगा. तो P की वैल्यू आएगी 900 × 100. सो द वैल्यू ऑफ P इज 90,000. तो देख सकते हैं कि कितना बेसिक सा सवाल था. अगर हम समझते हैं तो ये जो बातें मैंने पूरी लिखी आप ओरली बोल देंगे. आप कहेंगे 5% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 10.25% डायरेक्टली ऐसे, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है 9%. इन दोनों का डिफरेंस होता है 1.25%. तो अगर आप इस टॉपिक को समझते हैं तो आप डायरेक्टली जो पहली लाइन लिखेंगे एग्जाम में वो यही होगी और सॉल्व करके P की वैल्यू बता देंगे विच इज 90,000. Alternative method can be, let us assume the principal as 100x. So what will be the compound interest of 2 years? So interest of first year will be 5% of 100x, which is 5x. But because it is a compound interest, so second year interest will be applied on this. It will increase by 5%. So 5x को अगर मैं 5% से बढ़ा दूं तो बनेगा 5.25x. So the total compound interest will be 10.25x. आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो इसके पहले वो 10.25% आया था, बस इतना सा फर्क है. ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो बढ़ता है 5% से, ये बात ध्यान रखना. अगर मैं पूछता कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताओ तो इसी को 5% से और बढ़ा देते हैं. खैर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज सेम. तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट विल बी, सिंपल इंटरेस्ट 3% पे कैलकुलेट हो रहा है. 3% ऑफ 100x दैट इज 3x. सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट विल बी 3x and third year का interest will be also 3x. So the total interest in 3 years will be 9x. So हमसे ये कहा गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का विच इज 10.25x, इस 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट जो कि 9x है इससे ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 1125 ज्यादा है. तो इन दोनों का डिफरेंस इज 1.25x एंड इट शुड बी इक्वल टू 1125. आप सॉल्व करिए तो x की वैल्यू आएगी 900. x की वैल्यू 900 है बट अपने से प्रिंसिपल पूछा है और हमारा प्रिंसिपल x नहीं है 100x है. तो आप कहेंगे 100 into x which is 900, तो 100 into 900. So answer will be again 90,000. So these are the two methods by which we can
go about this question. Very easy question, should have been attempted in the exam. Let's see another question. Yes. The question says, Aaron bought some pencils and some sharpeners. Spending the same amount of money as Aaron, Aditya bought twice as many pencils and 10 less sharpeners. If the cost of one sharpener is 2 more than the cost of pencil, then the minimum possible number of pencils bought by Aaron and Aditya. So, first of all, there are two people, Aaron and Aditya. They are buying some pencils and some sharpeners. We don't know the value of the pencil and sharpener bought by Aaron, so let us assume it. आपसे कहा है कि Aaron bought some pencil and some sharpeners, so let us assume that the number of pencils bought by Aaron is P and the number of sharpeners bought by Aaron is S. Okay, so P or S is the number of pencils and sharpeners bought by Aaron. Spending the same amount of money as Aaron, तो आदित्य bought twice pencils. तो वो ये कह रहा है कि आदित्य भी उतना ही अमाउंट खर्चा कर रहा है जितना एरॉन खर्चा करता है, लेकिन आदित्य जो है पेंसिल ज्यादा लेता है. कितना ज्यादा लेता है? कहा गया ट्वाइस, 2p एंड 10 लेस शार्पनर्स. तो अगर ये एस शार्पनर खरीदता था तो ये एस माइनस 10 शार्पनर खरीदा गया है. इसके बाद ये तो पेंसिल और p और s 2p या s माइनस 10, दिस इज द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड नंबर ऑफ शार्पनर्स बॉट बाय एरॉन एंड आदित्य. बट वी ऑल्सो हैव टू टेक इन कंसिडर the cost of one pencil, and in the question it has been given that the cost of one sharpener is 2 more than the cost of pencil. तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेंसिल अगर x रुपीस की आती है, एक पेंसिल, तो एक शार्पनर कितने का आता होगा? x प्लस 2 का आता होगा, x प्लस 2 का आता होगा. अच्छा, हमें एक हिंट इस क्वेश्चन में दी गई है कि एरॉन और आदित्य सेम अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर रहे हैं. अगर आप सिर्फ पेंसिल्स को ऑब्जर्व करिए तो एरॉन p पेंसिल ले रहा है और आदित्य 2p पेंसिल ले रहा है, तो मतलब पेंसिल पे आदित्य ज्यादा खर्च कर रहा होगा. आप ये देख सकते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट शार्पनर्स, शार्पनर एरॉन जो है s खरीद रहा है, लेकिन आदित्य ने s माइनस 10 मतलब कम शार्पनर्स खरीदे हैं. पेंसिल इसने ज्यादा खरीदा है, शार्पनर इसने कम खरीदे हैं, बट दोनों का जो अमाउंट स्पेंड है वो सेम है. तो यहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा अमाउंट आदित्य पेंसिल में स्पेंड कर रहा होगा उतना ही कम अमाउंट वो शार्पनर में स्पेंड कर रहा होगा, बिकॉज तभी तो एरॉन और आदित्य की वैल्यू क्या हो पाएगी? इक्वलाइज हो पाएगी. ये बात अभी मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी डिस्कस करूंगा, बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि बिकॉज आदित्य और एरॉन खर्चा बराबर कर रहे हैं, तो आप यहां से कह सकते हैं कि आदित्य पेंसिल पे कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है. तो तुम ये कहोगे जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है दैट इज इन दोनों का अमाउंट का डिफरेंस, और अमाउंट के लिए आपको x को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो आप कहेंगे 2px में मैं px माइनस कर दूंगा तो दैट विल बी px. दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड बाय आदित्य ऑन पेंसिल. व्हाट इज द लेस अमाउंट स्पेंड बाय आदित्य ऑन शार्पनर्स? तो तुम कहोगे s इंटू एक्स प्लस 2 इसने खर्च किया होगा एरॉन ने, s माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2 खर्च किया होगा आदित्य ने. अगर आप इसे माइनस करें तो आपको दिखेगा s इंटू एक्स प्लस 2, s इंटू एक्स प्लस 2, तो दोनों में आएगा, तो इसका डिफरेंस आएगा 10 इंटू एक्स प्लस 2, 10 इंटू एक्स प्लस 2. ध्यान रखना, दिस इज द डिफरेंस ऑफ आदित्य एंड एरॉन इन शार्पनर. This is the difference of Aditya and Aaron in pencil, because they have spent the same amount. So this should be equal. This difference should be equal. तो px is equal to 10 times of x plus 2. इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10x को मैं लेफ्ट में ले आऊंगा और x कॉमन हो जाएगा, तो x इंटू p माइनस 10 इक्वल टू 20. x इंटू p माइनस 10 इज इक्वल टू 20. आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा ये है देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट बाय. तो हमें दो वेरिएबल्स हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन हमें एक तरीके से p की मिनिमम वैल्यू बतानी है. तो आप खुद सोचो, दिस इज x एंड दिस इज p माइनस 10, इनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, और हमें p को कम रखना है. अच्छा, p को मैं 10 से कम तो रख नहीं सकता, 10 से कम रखूंगा तब तो ये p माइनस 10 नेगेटिव हो जाएगा. p को मैं 10 भी नहीं रख सकता, क्योंकि 10 रख दूंगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे. 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो होता है. तो मैं p को कम भी रखने की कोशिश करूंगा, तो मिनिमम वैल्यू मुझे p की वैल्यू 11 रखनी पड़ेगी, बिकॉज 11 माइनस 10 विल बी 1 एंड 1 x विल बी 20, सो 20 इंटू 1 विल बी 20 विच इज वेरीफाइड.
तो आप ये कहेंगे कि P की मिनिमम वैल्यू भी 11 रखी जा सकती है, बट आपसे P की मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पेंसिल्स बॉट बाय एरॉन एंड आदित्य टुगेदर। तो आपको पता है कि एरॉन P पेंसिल खरीदता है, आदित्य 2P पेंसिल खरीदता है, तो दोनों मिला के 3P पेंसिल खरीदते हैं। P की मिनिमम वैल्यू 11 है, तो 3P की मिनिमम वैल्यू 3 इंटू 11 होगी, विच इज 33, जो कि सेकंड ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेट किए, अगर आप ये बात ऑब्जर्व कर ले जाएं कि जितना ये ज्यादा खर्च कर रहा है पेंसिल में, उतना ही वो शार्पनर में उसे कम खर्च करना पड़ेगा, तभी टोटल वैल्यू क्या हो पाएगी, बराबर हो पाएगी। एक तो ये तरीका है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा, बात सेम है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एरॉन टोटल कितना पैसा खर्च करता है एरॉन, तो आप ये कहेंगे P पेंसिल, एक पेंसिल X की आती है तो पेंसिल पे वो PX खर्च करेगा। एरॉन शार्पनर पे कितना खर्च करेगा, कहोगे S शार्पनर खरीद रहा है X+2 का, तो तुम कहोगे S इंटू X+2, S इंटू X+2, ये टोटल एरॉन का अमाउंट है। आदित्य 2P पेंसिल खरीद रहा है, एक पेंसिल X की आती है तो दैट इज 2PX, प्लस वो S-10 शार्पनर खरीद रहा है, एक शार्पनर X+2 का आता है, तो शार्पनर पे वो खर्च करेगा S-10 इंटू X+2। अब जरा ऑब्जर्व करिएगा, मैं इसे जब सॉल्व करूंगा ना तो वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे आई थी सॉल्व करने पे। आप देखना ये बनेगा PX प्लस S इंटू X विल बी SX, S इंटू 2 विल बी 2S, 2PX प्लस S इंटू X विल बी SX, S इंटू 2 विल बी 2S, माइनस 10X माइनस 20। जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल आउट कर दो, 2S and 2S will get cancelled, SX and SX will get cancelled, so finally we can say that it will become 2PX here, 2PX में PX माइनस कर देना, राइट में लेके जाना, ये इक्वल टू है 2PX माइनस PX will be PX। नाउ ये सब इधर ले आना, तो ये बनेगा 10X प्लस 20, 10x को भी इधर ले आओ तो x इंटू पी माइनस 10 की वैल्यू आ जाएगी 20, और x इंटू पी माइनस 10 की 20 की जो वैल्यू थी वो भी तो इसी को सॉल्व करने पे आई थी। आप कहेंगे x इंटू पी माइनस 10 इज 20, वी हैव टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ p, because we have to minimize the value of p, तो the minimum value of p can be 11, we have to find the minimum value of 3p together, so that will be 3 into 11 which is 33। Thank you.